Hello everyone. Today we will study about some of the advanced instructions of assembly language programming. That means we are going to study about 16-bit instructions, the instructions that are going to deal with the 16 bits of information. So our first topic for today is programming techniques, looping, counting and indexing. Let's talk about loop first. What is a loop? Loop means repetition of tasks. This looping technique, this is of two types, continuous loops and conditional loops, or you can say that loops are of two types. One is continuous loop, another one is conditional loop. What is a continuous loop? Any loop that repeats a task continuously, And what is conditional loop? Conditional loop means where a task is repeats a task under, or you can say until, certain conditions are met. So this is conditional loop. Conditional loop means repetition of task will take place, but it will stop when a certain condition is met. So this is looping. Now let's talk about some 16-bit arithmetic instructions. One more thing I would like to tell you, in looping, counting plays a major role. See, सपोज कीजिए हमें कोई भी लूप इनिशियलाइज करना है, तो वो लूप कितनी बार रिपीट होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस काउंटिंग. दिस काउंटिंग मीन्स द वैल्यू ऑफ द काउंटर. And what is this indexing? Indexing means pointing or referencing objects with sequential numbers. लूपिंग का मतलब है किसी टास्क को रिपीट करना, कितनी बार रिपीट होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय काउंटिंग. एंड व्हाट इज इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग मीन्स कि हर एक काउंटिंग वैल्यू पर जो भी टास्क रिपीट हो रहा है उसकी वैल्यू को रेफरेंस करना, दैट इज इंडेक्सिंग. Now come to 16-bit arithmetic instructions. We have studied about 8-bit instructions. Now we'll start with 16-bit arithmetic instructions. The first one is LXI. See, LXI B2050. This is a 3-byte instruction. This is a 3-byte instruction. In this, what happens? LXI, L means load. As we know that in 8086, X denotes register pair. So what is LXI B2050H? Means हमें क्या करना है, ये जो रजिस्टर B है हमारे पास, we have BH and BL. Okay, means higher order bytes of register B, lower order bytes of register B. So हमें क्या करना है, लोड करना है. What we have to load? This 16-bit number. This 16 number means lower order bytes जाएंगे BL में और higher order bytes स्टोर होंगे BH के अंदर. So this is what LXI B2050H actually means. और हमें क्या करना है? LXI means load. Load what? Load this 16-bit number into register pair B. This is how the implementation takes place. Now focus on this question. Write instructions to load the 16-bit number 2050 in the register pair HL using LXI and MVI opcodes and explain the difference between the two instructions. See, हमें क्या करना है? We have to load a 16-bit number 2050 in the register pair HL using LXI and MVI. So first we'll do it with LXI and then we'll do it with MVI. See, if we are using LXI, that means this 16-bit number, this can be transmitted or this can be stored in register pair HL by using a single instruction, that is LXI H2050H. That's it. LXI H2050H means 50 जाएगा इधर और 20 जाएगा इधर.
Simple. Now come to MVI. MVI, this is what? This deals with 8-bit data only. So we cannot transfer 2050, that is a 16-bit number, in one go in the HL pair. So what we will do? First we'll write MVI L50H, clear, and MVI H20H, ऐसे बीच में होगा. This is how we transmit or we store the 16-bit number into HL pair. So that means 2 MVI instructions is equals to 1 LXI instruction. Okay, so obviously if we are using LXI, then it is taking less time as compared to MVI, because MVI is taking 2 instructions per cycle to load this 16-bit number into HL pair, but LXI, this is loading the 16-bit number in one attempt or in one go in the HL pair. So this was the difference between LXI and MVI opcodes. Now let's move to another type of instruction, that is data transfer or copy from memory to microprocessor. First is MOVBM. MOVBM means simply move the contents of memory into register B. That's it. Same. Now come to LDAX. LDAXB. LDAXB means load accumulator indirect. Load accumulator indirect. What is this? See, LDAX. LDA we know. LDA means load to accumulator. What we have to load to accumulator? Whatever is there in the register pair B. See, register pair B में क्या होगा? अब एक नंबर होगा स्टोर BHBL. अब क्या होगा? सपोज कीजिए 2040, तो 20 यहाँ होगा और 40 यहाँ होगा. ठीक है. सो LDAXB मीन्स हमें क्या करना है? हमें एक्यूमुलेटर में डेटा को लोड करना है. पर कौन सा डेटा? जो मेमोरी लोकेशन रजिस्टर बी स्पेसिफाई कर रहा है. दैट मीन्स बी के पास क्या है? एक मेमोरी लोकेशन. ठीक है. एक्स मीन्स रजिस्टर पेयर. हमें एक्यूमुलेटर में लोड करना है क्या? वो डेटा जो कौन सी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है? जो रजिस्टर बी स्पेसिफाई कर रहा है. रजिस्टर बी के पास क्या है? 2040, यानी कि मेमोरी में कोई एक लोकेशन होगी 2040. उस मेमोरी पे जो भी डेटा हमारा स्टोर है, सपोज कीजिए 53 ये स्टोर है, हमें क्या करना है? हमें उसको उठाकर एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करना है. दिस इज LDAXB. नाउ कम टू LDA2050H. See, there is a difference. This is indirect. This is load accumulator direct. What is load accumulator direct? LDA2050H means हमें क्या करना है? हमारे पास जो रजिस्टर है A accumulator, अगेन 16 बिट के लिए 8086 में AH और AL होगा. सो LDA2050H मीन्स 20 यहाँ पर और 50 यहाँ पर. डायरेक्ट हमें ये 16 बिट नंबर ही एक्यूमुलेटर में लोड कराना है. दिस इज LDA2050. क्लियर? नाउ to understand more clearly the difference between these three, let's take one example. Suppose we have a question. The memory location 2050H holds the data byte F7H. Write instructions to transfer the data byte to the accumulator using MOV, LDAX and LDA. हमने क्या बोला है कि memory में, suppose this is memory, this is your memory, these are your registers, first is MOV. We have to use MOV instruction to do what? To load the number that is stored at memory location 2050. Suppose memory में एक location है 2050H, उस location पर data store है F7. हमें क्या करना है? We have to store this into register first using MOV.
Write instruction to transfer the data byte into the accumulator. Now we are dealing with accumulator. So MOV takes 8-bit data. Okay, MOV takes 8-bit data. तो अब है हमारे पास क्या है, यहाँ पर होगा accumulator 8085 की बात करें तो, क्योंकि MOV क्या है 8 बिट्स, तो B C D E H L ये रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होगा. सो MOV का यूज़ करके हमें क्या करना है, इसको एक्यूमुलेटर में लोड कराना है. तो कैसे करेंगे, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन, सी हाउ कैन वी डू दिस. LXI H 2050H MOV AM. LXI H 2050H MOV AM. So what is this? LXI H 2050H means रजिस्टर पेयर H में हमें क्या स्टोर कराना है, वो जो मेमोरी लोकेशन 2050 पर स्टोर है. दैट मीन्स ये F7 कहाँ आकर स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट केस यूजिंग LDAX. मूव डन. Now come to LDAX. What is this? Again, LXI B 2050H LDAX B. What is this? LXI B 2050H. हमने क्या करा, हमारे पास रजिस्टर है B, ऑब्वियसली 16 बिट है. 16 बिट है तो BH और BL होगा. तो हमने क्या किया, हमने बोला कि मेमोरी लोकेशन LXI B 2050H हमने बोला कि B में लोड करा दो 2050H, जो भी 2050H पर हमारा स्टोर है. ठीक है. अभी था LXI B 2050H. LXI B का मतलब हो गया 20 यहाँ आएगा और 50 यहाँ आएगा. हमने 16 बिट नंबर को रजिस्टर B में स्टोर करा दिया. नाउ LDAX B मीन्स लोड टू एक्यूमुलेटर. क्या लोड करना है, द डेटा दैट इज प्रेजेंट एट द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय रजिस्टर पेयर B. यानी कि B में कौन सी लोकेशन है, 2050. इस 2050 पर जो भी डेटा स्टोर्ड है मेमोरी में, वो हमें क्या करना है, हमें मेमोरी में जाकर स्टोर कराना है. आ गया है यहाँ पे. फाइन. दिस इज LDAX. नाउ कम टू LDA. LDA में क्या होगा, सीधा हम लिखेंगे LDA 2050H. हमें क्या कहते हैं, लोड टू एक्यूमुलेटर. व्हाट लोड टू एक्यूमुलेटर, 2050H. 2050H हमें क्या है, F7 है. F7 क्या है, एक 8 बिट नंबर है. तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली उसको क्या कर दिया, एक्यूमुलेटर में मूव करा दिया. 8085 में यहाँ पर फ्लैग्स होंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F7. सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन MOV, LDAX एंड LDA. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेटा ट्रांसफर फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू मेमोरी और डायरेक्टली इनटू मेमोरी. अगेन वी हैव MOV MR. MOV MR मीन्स मूव फ्रॉम रजिस्टर टू memory. Now come to STAX. What is STAX B? This means copy the data from the accumulator into the memory location specified by the register B. ठीक है. B रजिस्टर में, दिस इज रजिस्टर BX यानी कि BH और BL. इसमें कोई लोकेशन स्टोर होगी, उस लोकेशन पर हमें क्या करना है, स्टोर. Copy the data byte. STA means store. Copy data from accumulator. Accumulator में हमारा जो भी डेटा स्टोर्ड है, उस डेटा को हमें कौन सी लोकेशन पर स्टोर कराना है, वो लोकेशन जो रजिस्टर पेयर B स्पेसिफाई कर रहा है. रजिस्टर पेयर B कौन सी स्पेसिफाई कर रहा है, यानी 3040. तो मेमोरी में 3040 पर जाकर ये डेटा जो एक्यूमुलेटर में होगा वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, मेमोरी लोकेशन नंबर 3040H. नाउ कम टू STA 2050H.
STA2050H मीन्स हमें अब एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर कराना है, डायरेक्ट ये 16 बिट नंबर. व्हाट इज द 16 बिट नंबर, 2050. 8 बिट्स में डिवाइड करेंगे तो 20 हायर ऑर्डर बाइट्स और 50 अनदर हायर ऑर्डर बाइट्स. क्लियर. नाउ वी हैव arithmetic operations increment and decrement. Increment means to add 1, decrement means to subtract 1. So for increment in 16 bit we have INX and here we have DCX. So if I write INXB, that means हमें क्या करना है कि रजिस्टर पेयर B के अंदर जो भी 16 बिट की मेमोरी लोकेशन है उसमें इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि 2050 प्लस 1 दैट इज इक्वलेंट टू 2051. हम आ गए अब 2051H लोकेशन पर. दिस इज INXB. एंड इफ आई राइट DCXB मीन्स कि B में, रजिस्टर पेयर B में जो भी लोकेशन स्पेसिफाई हुई है उसी लोकेशन में हमें क्या करना है, एक डिक्रीमेंट करना है. सो हम आ गए 2049H पर. क्लियर. चले नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन. 16 bytes of data are stored in memory locations at XX50H to XX5FH. Transfer the entire block of data to new memory locations starting at XX0H. Data in hexadecimal is this. These are 16 numbers. This data, this is 16. These are 16 numbers. ठीक है. हमें क्या करना है, हमें इन 16 नंबर्स को, हमसे बोला जा रहा है दैट दीज आर स्टोर्ड एट XX50H टू XX5H. एक्सेस का मतलब यहाँ पर डोंट केयर, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. हमने बोला XX50H से लेकर XX5FH तक कुछ 16 नंबर्स स्टोर हैं. दैट मीन्स XX51, XX52 अप टू दिस लोकेशन. 16 नंबर्स स्टोर हैं. फर्स्ट नंबर क्या है, 37, देन A2, देन F2 एंड देन लास्ट इज 98. सो दीज आर द 16 नंबर्स. सो हमसे बोला है द ट्रांसफर द एंटायर ब्लॉक ऑफ डेटा टू अ न्यू मेमोरी लोकेशन स्टार्टिंग एट XX70. हमें क्या करना है, हमें इन मेमोरी लोकेशन से हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है नई मेमोरी लोकेशंस पर. ठीक है. दैट मीन्स जो XX50H पर स्टोर था अब वो कहाँ स्टोर होगा, XX70 पर. जो XX51 पर था वो होगा 71 पर. इन द सेम वे 98 है. सो वी हैव टू राइट अ कोड फॉर दिस प्रॉब्लम. सो we'll use the instructions that we have studied few minutes back. Let's try. हमने बोला LXI H XX50H मीन्स हमने क्या किया, H में हमने क्या स्टोर करा दिया, एक लोकेशन XX50. ठीक है. अभी हमारे पास H में क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है XX50. ठीक है. नाउ LXI D XX70. अब हमने क्या किया, ये तो था रजिस्टर H, हमने रजिस्टर D में क्या स्टोर करा दिया, XX70H. That means we are pointing to the first memory location where the number is actually stored, and here we are pointing to a memory location where we want to store this number that is stored at XX50 to XX70. जो नंबर XX50 पर स्टोर है उसको हमें XX70 पर हमें मूव करना है. तो हमने दोनों ही लोकेशंस रजिस्टर पेयर में स्टोर करा ली. सॉरी, दिस इज D. एक रजिस्टर H में और एक रजिस्टर D में. क्लियर. इन दिस वे वी आर पॉइंटिंग टू दीज मेमोरी लोकेशंस. नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने एक काउंटर ले लेते हैं जो हमने स्टोर करा दिया रजिस्टर B में. MVI B10H. 10 is equivalent to 16. 10 in hexadecimal, this is equivalent to 16 in decimal.
सो 16 नंबर्स थे तो हमें एक काउंटर वैल्यू लेना था, तो काउंटर के लिए हमने क्या करा, पहले 16 को कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में, बिकॉज वी आर डीलिंग विद हेक्साडेसिमल्स. सो MVI B10H मीन्स हमने एक काउंटर की वैल्यू 16 हमने स्टोर कर दी रजिस्टर B में. नेक्स्ट अब क्या होगा, कुछ टास्क का रिपीटिशन होगा, तो हमने क्या किया, एक लेबल बना लिया नेक्स्ट के नाम से. आप चाहो कुछ भी लिख सकते हो. MOVAM मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी इनटू एक्यूमुलेटर. मेमोरी में जो भी स्टोर है, मेमोरी में क्या स्टोर है, एक लोकेशन XX50, हम कहाँ आ गए, उसे स्टोर करा दिया हमने एक्यूमुलेटर में. नाउ STAXD. STAXD मीन्स store. STA means store. So STAX means copy data from accumulator into the memory location specified by register D. तो रजिस्टर D में हमने क्या किया है, हमारे पास रजिस्टर D में क्या स्टोर है, XX70. फाइन. हमने मेमोरी से, मेमोरी में क्या है अभी, XX50. XX50 ये अब हमारे एक्यूमुलेटर में आ गया है XX50. ठीक है. अब हमने लिखा STAXD. STAXD मीन्स स्टोर और यू कैन से कॉपी डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर इनटू द मेमोरी. सो यानी कि एक्यूमुलेटर में जो भी स्टोर्ड है उसको मेमोरी में कॉपी करना है. ठीक है. STAXD मीन्स कि हमें D रजिस्टर में जो भी लोकेशन स्टोर्ड है, D में क्या स्टोर्ड है, XX70 लोकेशन पर हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को मूव करना है. एक्यूमुलेटर में क्या है, XX50. स्टोर और कॉपी द डेटा दैट इज प्रेजेंट एट द मेमोरी लोकेशन दैट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर के पास क्या है, लोकेशन. इस लोकेशन पर जो भी कंटेंट्स अवेलेबल हैं वो मूव करा दो XX70 पर. दैट मीन्स एक्यूमुलेटर में क्या है, जो H में था, H में क्या है, फर्स्ट नंबर 37. H के पास क्या है, XX50. XX50 लोकेशन पर कौन सा नंबर स्टोर है, 37. तो दैट मीन्स हमारा फर्स्ट नंबर अब आकर स्टोर हो गया XX70 पर. क्लियर. फर्स्ट नंबर स्टोर. अब हमें क्या करना है, हमें यही सेम प्रोसेस नेक्स्ट नंबर्स के लिए रिपीट करना है. तो हम क्या करें, एक लोकेशन आगे आ जाएं. XX50 स्टोर हो गया XX70 पर. अब हमें करना है XX51 को XX71 पर, यानी कि एक एक लोकेशन ऐड करना, इंक्रीमेंट कर दें. 50 में एक इंक्रीमेंट करेंगे 51 पर आएंगे, 70 में ऐड करेंगे तो 71 पे आएंगे. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं INXH INXD. हमने दोनों की लोकेशंस को इंक्रीमेंट कर दिया और काउंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया. क्यों, क्योंकि अब हमारे पास 15 नंबर्स बचे हैं. क्लियर. नाउ अब यही प्रोसेस बार बार रिपीट होगा. कब तक, जब तक जीरो फ्लैग, जंप इफ नॉट जीरो टू नेक्स्ट. जब तक जीरो नहीं होता तब तक नेक्स्ट को ही बार बार एग्जीक्यूट करते रहो, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे ही जीरो फ्लैग सेट होगा, देन हॉल्ट. सो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस नंबर, सॉरी दिस प्रोग्राम. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. 6 bytes of data are stored in memory locations starting at XX50H. Add all the data bytes. Use register B to save any carries generated while adding the data bytes. Display the sum at two output ports XX70H and XX71H. Data is this. हमसे बोला है कि हमारे पास 6 नंबर्स हैं, हमें उनको ऐड करना है और ऐड करते जाना है, 1 by 1 ऐड करना है. और ऐड करने वक्त अगर कोई कैरी जनरेट हो रही है तो वी हैव टू स्टोर ऑल द कैरीज इन रजिस्टर B. फाइन. एंड वी हैव टू डिस्प्ले द रिजल्ट एट 2 आउटपुट पोर्ट्स. ऑब्वियसली 16 बिट हमें लोकेशंस दी हुई हैं तो हमें 2 पोर्ट्स पर डिस्प्ले करना है. हायर ऑर्डर बाइट्स एक पोर्ट पर, लोअर ऑर्डर बाइट्स एक पोर्ट पर, या फिर हम चाहें तो हम 8 बिट्स रिजल्ट के XX70H पर स्टोर करें और रिमेनिंग 8 बिट्स XX71H पर स्टोर करें. सो दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू. सो लेट्स स्टार्ट. But before starting, I am just giving you a brief description how you can solve this question, and I will not tell the solution in this video. I'll tell you the solution in the next video. But before that, I want you to try this.
I'm explaining the entire process how to do this. I'm expecting the result from your side. See, हमें बोला है that ये 6 नंबर्स मेमोरी में स्टोर हैं. हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पिक होगा, ठीक है. फर्स्ट नंबर के साथ सेकेंड नंबर ऐड हो जाएगा. ऐड होने के बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है. सपोज कीजिए x, ठीक है. और कुछ अगर कैरी आती है तो कैरी हमें स्टोर करनी है रजिस्टर B के अंदर. अब इस रिजल्ट में थर्ड नंबर ऐड करेंगे. रिजल्ट x प्लस थर्ड नंबर दैट इज़ DF. ऐड करने के बाद सपोज कीजिए y आया. y आने के बाद कैरी आती है तो उसको अगेन रजिस्टर B में स्टोर कराना, यानी कि B के कंटेंट्स को इंक्रीमेंट करोगे आप. इफ़ कैरी इज़ देयर यू हैव टू इंक्रीमेंट द contents of register B. In this way, when you are done with the addition of all these 6 numbers, you have to display the sum at port 1 and port 2. Port 1 पर आप higher order bytes, higher 8 bytes, sorry bits, और यहाँ पर lower 6 bits. इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है. So this is your homework. I'll discuss the solution in the next video. Now let's move to the last topic for today, that is logic operations. Rotate. We have 4 types of rotate operations. Rotate means just to shift left or right, but rotate, if we are saying rotate, that means circular shift. So in logic operations rotate, we have 4 types of rotate operations: RLC, RAL, RRC and RAR. What is RLC? RLC means rotate accumulator left. RLC means rotate accumulator left, and RAL means rotate accumulator left through carry. Okay? So now suppose we have a 8-bit number like 1 0 1 0 1 0 1 0, and initially the carry is 0. I'm saying carry flag is 0. So what we have to do, we have to apply RLC operation. So in RLC operation means हमें लेफ्ट की तरफ रोटेट करना है. तो दैट मीन्स ये वाला 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर. 1 आ जाएगा इधर. इन दिस वे 0 D0 बन जाएगा D1. ये 1 इधर, 0 1 0 1 0. Fine. Now one thing, in rotate accumulator left, when we are rotating this D7 bit, this will be copied to carry as well as to D0. That means यही D7 bit तो carry flag में स्टोर होगी, और यही D7 bit हमारी कहाँ स्टोर होगी, हमारी D0. ओके, क्लियर. सेम बिट जो हमारी D7 बिट है वही एज अ कैरी वर्क करेगी और वही एज अ D0 वर्क करेगी. सो दिस वॉज RLC. नाउ कम टू RAL, रोटेट एक्यूमुलेटर. और यू कैन, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे कर सकते हो कि यही बिट यहाँ पर जा रही है और यही सेम बिट हमारी यहाँ पर भी कॉपी हो रही है. सेम बिट, दिस सेम बिट इज कॉपीड in the carry as well as D0. Now come to rotate accumulator left. Rotate accumulator left में क्या होगा, the process is same. Suppose कीजिए ये है तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. क्लियर. अब क्या होगा यहाँ पर, ये जो D7 है this will be copied into carry and carry is copied into D0. That means D7 बिट क्या है 1, ये चली जाएगी कैरी के पास, और जो कैरी है वो आ जाएगी यहाँ D0 में. This is rotate accumulator left through carry. In the same way, we have RRC and RAR. RRC means rotate accumulator right, and this means rotate accumulator right through carry. Now suppose we have this number, we have to apply RRC. RRC is same,
हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो अब की बार ऐसे शिफ्ट होगा, तो 1 0 0 0 0 0 0। अब ये जो है D7, सॉरी D0, दिस इज D0, दिस इज D7। D0 बिट हमारी कैरी में भी कॉपी होगी और यही सेम D0 बिट हमारी D7 में भी कॉपी होगी। सो दैट मीन्स 1 हमारा यहाँ पर भी आएगा और हमारा कैरी में भी आएगा सेम। नाउ कम टू RAR। अब क्या होगा, राइट की तरफ रोटेट होगा 0, और ये वाला जो D0 है दिस इज कॉपीड इनटू द कैरी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग इज कॉपीड इनटू द D7। ठीक है, D0 1, ये कहाँ चला जाएगा, कैरी के पास, और कैरी क्या थी 0, ये 0 आ जाएगी D7 के पास। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉजिक ऑपरेशंस रोटेट। सो आई एम डन विद टुडेज सेशन। दिस क्वेश्चन, sorry not this question, this is your homework and you have to submit this assignment before 4 p.m. tomorrow. That's it for today. Thank you.